ऑलराइट, बिफोर वी स्टार्ट द टेक्निकल एनालिसिस और हम बात कर रहे हैं उस एक ट्रैप की जिसमें टॉटनहम हॉटस्पर बार बार फॉल किए जा रहा था अगेंस्ट विलारियल. आई जस्ट वांट टू क्लैरिफाई अ कपल ऑफ थिंग्स. आई एम नॉट सेइंग दैट थॉमस फ्रैंक शुड बी we should let go of Thomas Frank, because I personally believe he is the man to take us forward. Even if he finishes at somewhere around 12, 13 and we don't win anything, I would still back him because I'm sick and tired of sacking managers and I genuinely believe in his abilities as a manager. Okay? What I'm actually saying is that this whole notion, this whole perspective of Thomas Frank can do no wrong. He can turn average players into, magnificent attackers. He can make those very minute tactical changes with the blink of an eye, और वो in-game management उसका on point होता है and he is the second coming of Christ, all that bullshit. I think ये कुछ ज़्यादा ही हो जाता है कभी कभी fans के बीच में, because despite the last 3 games has not been good, in fact they have been bad in many instances, still people, I think most of the people are saying that Thomas Frank is, brilliant, has been brilliant, his tactics has been brilliant, it's all about the players, they are not ready, this and that. I think that's complete bullshit. He has not been good for the last 3 matches. If you want to see what happened against West Ham, especially the first half, I already made a 30 minutes analysis of that video. Most of the points from that video still apply in this match as well, but I'm not going to talk about it. We are going to talk about very specific thing, so I think this video is going to be pretty short. Let's start now. The main problem during this match that we faced was the build-up play. We were not able to build from back and it got pretty boring. Now, to understand what happened during the build-up play, we need to look at what formation we were playing. And even though Thomas Frank said that we were playing something like 4-1-5, it looked more like a 4-1-4-1. The same formation that Man City played against Man United and absolutely dominated them. And it is a really good formation, so flexible, really beautiful. So it looks something like this. There are two 4-man walls, two 4-man lines that we have: a defensive line, then a single pivot, then midfield, and then a striker. Okay. Now the difference between this and a 4-3-3 is that 4-3-3 is an attacking style, while this formation is like a defensive variation of 4-3-3, because the two 4-man lines are very close together in this case, while in 4-3-3 this midfield, these wingers are very high up above. Now in actual match this formation looked something like this. As you can see, Richarlison up front, 4-man midfield, Rodrigo Bentancur at number 6, and then we have our backline who was pretty high in that game. If we move forward and actually start talking about the problems, now see, I want you to look at this picture, and what you can see in this picture and what you could see throughout the match before they conceded was that their front two were not much concerned with pressing our center backs. Their main priority was to block those passing lines to Rodrigo Bentancur and force Tottenham Hotspur to play through the wings, not through the midfield. And they succeeded in doing this 99% of the time, which is very appalling considering we have a tactical genius in our team. Now this kept happened again and again, and why they wanted us to play through the wings, there's a reason for it. Because the formation that they were playing was a 4-4-2. 4-4-2 में वो हमें press कर रहे थे. They were pressing Tottenham Hotspur in the formation of 4-4-2, and in this formation, when you try to go progress the ball through wings, what happens is there forms a box, and you get overloaded, you get outnumbered by their players. As you can see, हम continuously 4v2 की situation में थे, कभी कभी 4v1 की situation भी हो जाती थी. and यहाँ पे you can see that box, अभी तुम्हें triangle लग रहा होगा, but it was more like a box. उनका full back प्रेस करता था, उनका जो मिडफील्ड 4 है उनमें से एक मिडफील्डर जो वाइड रहता है वो प्रेस करता है, उनका जो फ्रंट 2 में से एक पर्सन बैक ट्रैक करता है, और उनका जो विंगर है वो भी आ जाता है. Let me look at another picture. Let me find another picture. Okay, इस वाले picture में you can clearly see the box around Mohamed Kudus and we getting outnumbered on the wings, and it kept happening again and again, and we had basically no answer. We were hoping. The only thing that we were hoping that would help us progress the ball was some brilliant show of
a skill from our players. And as you can see in this picture, Javi Simmons does this brilliant flick and it releases Spence to go forward. Now, Spence, even though he was sometimes released to go forward, he was allowed to go forward. He did not have that quality on his left leg to deliver really good crosses. He was mainly relying on low driven crosses. Low driven crosses पर उसका ज़्यादा focus था, and low driven crosses is not a good option जब सामने वाले के बॉक्स में उनके प्लेयर्स बहुत ज़्यादा हों and you are trying to उनके दो दो पैर होते हैं हर प्लेयर के, as you already know, और you are trying to play through those, so it's really प्रोबेबिलिटी काफ़ी कम हो जाती है कि वो रिचार्लिसन के सर तक पहुंचेगी वो बॉल. Now what we could have done, the easiest thing that we could have resorted to was a big switch of play. Why does it work? क्योंकि जो उनकी फॉर्मेशन है और जिस हिसाब से वो बॉक्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उनका जो फ्रंट टू में से एक प्लेयर पीछे आता है, उनका फुल बैक आगे प्रेस करता है, उनका मिडफील्डर इधर प्रेस करता है, एंड ऑल ऑफ अ सडन अगर तुम बॉल को स्विच कर दोगे दूसरे फ्लैंक पे, तो यू कैन फाइंड योर प्लेयर्स 1v1. इवन कभी कभी तो एकदम पूरा स्पेस मिल जाता है रन करने के लिए, एंड दीज स्विच ऑफ प्लेस कैन बी रियली रियली डेवास्टेटिंग टू देयर होल फॉर्मेशन. एंड वी सॉ दिस अगेन एंड अगेन इन द गेम दैट we were attempting to do that sometimes, but it felt like कि ये चीज़ें ना were coming from players से आ रही थी instead of कि it being a part of the game. अगर ये गेम का एक पार्ट होते ना, तो ये जो मैं तुम्हें पिक्चर्स दिखा रहा हूँ, ये सब चीज़ें होने की, ये 1% नहीं होता गेम का. 99% ऑफ द टाइम हम वही सेम चीज़ रिपीट नहीं कर रहे होते. वो हॉर्स शू पासिंग कि फुल बैक से डिफेंडर के पास आ गई, डिफेंडर से दूसरे डिफेंडर के, फिर फुल बैक के, फिर इधर ऐसे नहीं घूम रही होती बॉल फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम. तो वी वर डूइंग बिग स्विचेस, बट द थिंग इज इट वाज नॉट कंसिस्टेंट इनफ एंड इट वाज नॉट कोच्ड इनफ इन माय ओपिनियन इन आवर टीम. बिग स्विचेस के कुछ एग्जांपल जो मेरे को मिले, जैसे यहाँ पे जावी सिमंस रिसीव करता है बॉल जब पेड्रो पोरो एक स्विच मारता है, एंड यू कैन सी जावी सिमंस इज नाउ 1v1 एंड ही एब्सोल्युटली बॉडीज देयर फुल बैक. इस सिनेरियो में हमने एक 1v1 बनाया था. एक और तरीका था 1v1 बनाने का, एंड दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग टू टॉक अबाउट. नाउ जब तुम ये फॉर्मेशन खेलते हो ना 4-1-4-1 वाली, लेट मी पुल अप द फॉर्मेशन. जब तुम ये फॉर्मेशन खेलते हो, इसका एडवांटेज ये होता है कि तुम्हारी जो बैक लाइन है और जो मिडफील्ड लाइन है वो काफ़ी पास होती है, एंड जो इंटरचेंज होता है ना, इंटरप्ले रोटेशन होता है प्लेयर्स का, इट इज़ वेरी इजी बिकॉज ऑफ द लेसर अमाउंट ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइन्स. बट आज क्या होता था, हमारे जो दो मिडफील्डर्स थे ना, दे वर गिवन फ्रीडम, और मे बी दे वर टोल्ड कि तुम्हें थर्ड मैन रन्स डालना है आगे की तरफ. तो वो लोग काफ़ी आगे रह रहे थे. रॉड्रिगो बेंटेंको वाज प्लेइंग एज अ नंबर 6. इसकी वजह से जो हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी वॉज दैट कि रॉड्रिगो की बात करते हैं. सी, रॉड्रिगो इज नॉट द काइंड ऑफ प्लेयर. काफ़ी लोग उससे बोलते हैं कि यू आर बीइंग वेरी हार्श ऑन रॉड्रिगो, बट आई जेन्युइनली बिलीव दैट ही इज जस्ट नॉट गुड इनफ. रॉड्रिगो, अगर तुम बाकी टाइम्स देखोगे जब 4-1-4-1 खिलाई है सक्सेसफुली किसी मैनेजर ने, जैसे बार्सिलोना में खिलाई थी पेप ने, उस टाइम पे उनका नंबर 6 था सर्जियो बुस्केट्स. ओके, और किसने खिलाई थी? चेल्सी ने खिलाई थी. उस टाइम पे उनका नंबर 6 था मैकेलेले. सो यू आर सीइंग द क्वालिटी देयर. ठीक है, रॉड्रिगो इज जस्ट नॉट एट दैट पॉइंट, ही इज जस्ट नॉट गुड इनफ. या तो वो हमेशा ब्लॉक्ड रहता था, या फिर उसे जब बॉल मिलती भी थी तो वो नेगेटिव या पैसिव पासिंग करता था. अगर वो हाफ टन पे भी बॉल रिसीव कर लेता था कभी कभी, तो ही लॉस्ट द बॉल. ही वाज नॉट क्विक इनफ कि वो डिसीजन ले. जैसे मेरे पास कुछ पिक्चर्स भी है गेम से. एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, रॉड्रिगो बॉल रिसीव करने वाला है, हाफ टन पे मुड़ा हुआ है, एंड ही कैन इमीडिएटली पास द बॉल टू बर्गवाल, बट इंस्टेड ही एंड्स अप लूजिंग द बॉल, एंड या फिर वो वापस पास कर देता है बॉल को. तो ये पूरे गेम में हमें देखना पड़ता था. सो हमारा जो नंबर 6 वाला प्लान था ना, इट वाज नॉट वर्किंग एट ऑल. दूसरा जो हमारा प्लान था कि हमारा नंबर 6 आए, एक डमी रन मारे, अपने साथ अपने मैन को भी इधर उधर ले जाए, और फिर पीछे से सारा बर्गवाल आके उस बॉल को रिसीव करें, एंड दे टेक इट टू द अदर फ्लैंक, जिससे वो एक काइंड ऑफ अ स्विच बन जाएगा एक तरह से. नाउ उसमें भी प्रॉब्लम ये थी कि जैसे रॉड्रिगो बेंटेंको यहाँ पे ड्रॉप कर रहा है, एंड इस इंसिडेंस में सार पीछे खड़ा है. ठीक है, अब मैं तुम्हें सक्सेसफुल वाले इंसिडेंट्स तो दिखा रहा हूँ, ठीक है, बट अगर मैं तुम्हें मोस्ट ऑफ द टाइम जो होता था वो दिखाऊं, मोस्ट ऑफ द टाइम होता था ये
जो लास्ट पिक्चर में हमने देखा था वो रेयरिटी थी। कभी कभी सार अपने ऑन हिज ऑन अकॉर्ड, ऑन हिज ऑन एजेंसी वो पीछे आ जाता था, बट मोस्ट ऑफ द टाइम जो क्लियरली विजिबल था हमारा पार्ट ऑफ द गेम ये था कि रॉड्री अकेला ही वहां पे था। इवन दो वो आगे ड्रॉप करता था, इट वॉज जस्ट नॉट गुड इनफ, क्योंकि मिडफील्ड में जगह ही नहीं होती थी और विंग पे तो हम एक प्लेयर से वैसे भी ओवरलोड नहीं कर सकते थे। दूसरा ऑप्शन हमारे पास ये था कि हमारा गोलकीपर विकारियो आगे आ जाए और वो बेट करे उनके जो फ्रंट टू प्रेसर्स हैं उन्हें। बट द थिंग इज, अगर तुम विकारियो को बेट करने के लिए यूज कर रहे हो देन यू आर इन बिग ट्रबल भाई। सो ये दोनों हमारे जो ऑप्शंस थे वर आउट ऑफ पिक्चर। नाउ व्हाट वी कुड डू एंड व्हाट वी एक्चुअली डिड वाज ट्रैक दोस थर्ड मैन रन्स एंड ट्राई टू बॉल उन तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था, पेड्रो पोरो स्पॉट्स अ थर्ड मैन रन एंड ही डिलीवर्स द बॉल directly to Sar and he receives the ball and we were 1v1 in that case। but वही है, एंड में हमारे पास क्वालिटी भी नहीं थी। बट इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन ओवरलैपिंग रन जो हमने मोस्ट ऑफ द गेम किया था, if we had focused on underlapping run we could have made something out of this game as well। ये एक और तरीका होता है to play through this plan that they had against us। अगर तुम्हें underlapping run से कुछ याद आ रहा है तो you are right, because this happened। यहाँ पे obviously you can see Bagwal is making run into half spaces and underlapping run, and वो ball receive करता है and we get our goal from this specific run of play that I was talking about। Now off the ball हमारे साथ एक प्रॉब्लम आ रही थी मिडफील्ड में, वही प्रॉब्लम जो काफ़ी बार हमें मैच के टाइम देखने को मिली थी। देयर वाज जस्ट नॉट इनफ कम्युनिकेशन। द प्लेयर्स फेल्ट लाइक कि इवन दो अलग अलग टैक्टिक्स यूज कर रहे हैं, अलग अलग पोजीशन यूज कर रहे हैं, दे आर नॉट इनफ वेल वर्स्ड विद द फॉर्मेशन दैट दे आर प्लेइंग। फॉर एग्जांपल इस केस में एज यू कैन सी बर्गवाल प्रेस करने आगे चला जाता है, बट अगर तुम अगला पिक्चर देखोगे तो इसमें बेंटेंकोर एंड पोरो दोनों एक दूसरे से बोल रहे हैं कि बर्गवाल आगे चला गया, उसके मैन को तू कवर कर, and none of them is going towards covering him। the man ends up receiving the ball और ये काफ़ी एक potent threat बन जाता है हमारी टीम के अगेंस्ट। and it happened more than once to be honest। काफ़ी बार हमें same man same position में same चीज़ होते हुए देखा हमने बार बार। another issue was that of discipline you can say, या फिर unfamiliarity with the whole defensive structure जिसकी हम इतनी तारीफ करते हैं। for example इस केस में there was no need for Poro कि वो अंदर ड्रॉ करे, ही नीड टू होल्ड हिज ग्राउंड एंड ही नीड टू डिफेंड हिज जोन, बट पोरो फिर भी आ जाता है इवन दो बेंटेंको ने कवर कर रखा है अपना मैन। एंड इसकी वजह से होता क्या है कि उनका एक प्लेयर पोरो वाले जोन में आ जाता है एंड पोरो हैज टू मेक अ रन बैकवर्ड्स एंड मेक अ ब्लॉक मिस हो जाता है एंड वी बेयरली स्क्रेप, हम काफ़ी मुश्किल से बचते हैं उस चीज़ से। सो ये कुछ इश्यूज थे एंड आई थिंक ये काफ़ी सॉल्वेबल इश्यूज भी थे। और सेकंड हाफ में ऐसा नहीं है कुछ किया नहीं हो, वी ट्राइड अ लॉट ऑफ थिंग्स। जैसे एक चीज़ जो ट्राई की थी वाज टू अप द टेम्पो विच इज़ अ गुड थिंग, एंड अगर तुम्हें कोई चीज़ इमीडिएटली अप्लाई करवानी है तो तुम ये करवा सकते हो। बट द थिंग इज़ टेम्पो अप करना क्यों चाह रहा था थॉमस फ्रैंक वाज दैट कि हमारा जो सेंटर बैक्स उनके बीच में बहुत बड़ा डिस्टेंस था, तो पासिंग काफ़ी स्लगिश हो रही थी और जितनी देर में हम पासिंग करते थे उनकी जो शेप थी वो शिफ्ट हो जाती थी। तो वी ट्राई टू अप द टेम्पो, जल्दी जल्दी पास करने की कोशिश की एंड वी बिकेम स्लॉपी ऑन द बॉल। दूसरी चीज़ जो हमें देखने को मिली थी वॉज कि रोमेरो को क्लियर इंस्ट्रक्शंस थे टू मेक दोज थ्रू बॉल्स बनाओ, थर्ड मैन को ढूंढो। स्पेशली बर्गवाल तक बॉल पहुंच ही नहीं पा रही थी, काफ़ी लोग ट्राई कर रहे थे और बीच में कोई ना कोई इंटरसेप्ट कर लेता था, तो वो भी काम नहीं किया था। बट एक जो यू कैन से लिमिटेशन जो थॉमस फ्रैंक फेस कर रहा था वाज दैट इट लुक लाइक कि वो काफ़ी रिलक्टेंट था टू मेक चेंजेस। ही वांटेड इट टू बी इन अ कंफर्टेबल पोजीशन इससे पहले कि वो अपने सब्स्टिट्यूशन को फील्ड पे लाए। ही वांटेड टू बी एटलीस्ट 2-0 अप, ही वाज प्रेइंग कि एक गोल आ जाए एंड देन आई विल मेक सब्स्टिट्यूशन। बिकॉज अगर कोई गेम इस सिचुएशन में फंसा हुआ है या फ्यूचर में कभी फंसेगा जहां पे वी आर जस्ट या तो 1-0 की लीड है या फिर वी आर बिहाइंड, हमें चेज करना है और उस टाइम पे तुम्हें सब्स्टिट्यूशन लाने हो मिडफील्ड के लिए एंड योर ऑप्शन इज पलीनिया, तुम्हारा ऑप्शन पलीनिया है। व्हाई? दिस इज द रीजन कि थॉमस फ्रैंक वाज seemed like कि वो थोड़ा रिलक्टेंट था चेंजेस करने के लिए बिकॉज इट इज नॉट द अटैकिंग ऑप्शन दैट ही नीड्स। अगर ग्रे किसी तरह फॉर्म पकड़ ले तो हो सकता है उसे थोड़ी हेल्प मिल जाए लीग में, बट द थिंग इज पलीनिया, इवन दो मैंने ये क्रिटिसिज्म बोला है उसका, ऑन द डे
he was our best player defensively or even on the ball as well. अच्छे passes देता था and his passes were comparatively good. हो सकता है because the rest of the team suddenly became shit, but that was I had to give him credit where credit's due. So overall ये issues थे and I still think that Thomas Frank has been a little bit disappointing. I completely expect him to be better and जैसे जैसे उसके जो foundations है वो embed होंगे टीम में, then maybe he will stop, he will start to risk a little bit more. अभी हमारा जो resting defense है उस पर काफ़ी focus रहता है to have a solid stable resting defense. अगर हम आगे आउट नंबर भी हो जाए तो हम ज़्यादा इतना लोड लेते नहीं है because we believe in our center backs and especially full backs. Now I think tactical analysis के लिए this is more than enough and to be honest I hope कि हम next match के बाद मैं जो वीडियो बनाऊँ it is very positive and yeah, I'll see you in the next video. Have a good day.